اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم سٹریم کر رہے ہیں چونکہ 26 مئی آنے والا ہے، تو مرزا غلام قادیانی کی موت کے حوالے سے، جو اس کی گندی اور بدبودار موت ہوئی تھی، اس حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی موت کے اسباب وہ کیا تھے، کون سے اسباب تھے، کس بنا پر مرزا غلام قادیانی کو یہ سزا ملی اور اللہ کی لعنت پڑی کہ اتنی دنیا کی گندی ترین موت سے اس کا واسطہ پڑا کہ آج تک کائنات میں کبھی کسی کی ایسی موت نہیں آئی جیسی موت مرزا غلام قادیانی کو آئی۔ تو یہاں پر لنک ہم نے شیئر کر دیا، اور یہ ہماری اسلامی نشست ہے، اس میں آپ عام سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اسلامی نشست کے اندر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آئیے جی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اس کا اخبار الفضل کیا کہتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے اخبار ہے الفضل قادیان کا، جلد 28، نمبر 50، صفحہ نمبر 1، مورخہ 2 مارچ 1940۔ اور جو شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ وہ نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت مرتا ہے اور اس کا انجام نہایت ہی بدبو دار اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا ایک اقتباس ہے جو کہ الفضل جلد 28، صفحہ 1، نمبر 50، مورخہ 2 مارچ 1940 کے اندر چھپا۔ مرزا غلام قادیانی یہاں پر اقرار کرتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، حالانکہ وہ شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ ہم کلام ہو، تو یہ جو موت ہے یہ مرزا غلام قادیانی کی موت کا ایک عکس ہے جو مرزا غلام قادیانی سے اللہ نے پہلے ہی اس کے منہ سے اگلوا دیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ اخبار تو 1940 کا ہے، لیکن یہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد یہ مرزا قادیانی کی عبارت کو انہوں نے لگایا ہے۔ مرزا غلام قادیانی اس کو اگر ہم دیکھیں تو نہ ہی تو وہ خدا کی طرف سے تھا، نہ ہی اس سے اللہ ہم کلام ہوا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا، اور مرزا غلام قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ بہت بری موت مرتا ہے اور اس کا انجام نہایت ہی بدبودار اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کا یہ قابل عبرت انجام ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ کیوں ہوا۔ کیا مرزا غلام قادیانی بری موت مرا کہ نہیں مرا، اور کیوں مرا۔ آج اسی حوالے سے ہم
یہ سٹریم کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں 3 استرے عبدالسلام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالسلام صاحب آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی جی، آواز نہیں جی صحیح آ رہی، بڑی معذرت عبدالسلام بھائی۔ اچھا جی، بہرحال سٹریم ہم جاری رکھتے ہیں، تو لنک ہم نے شیئر کر دیا، کسی نے کوئی گفتگو کرنی ہو تو گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو کہا تھا کہ اس کی بری موت آتی ہے، بدبودار موت آتی ہے، اور انتہائی دنیا کی بدترین موت وہ مرتا ہے، کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور مرزا نے جھوٹ بولا، کذب بیانی کی، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ عز و جل نے بھی اعلان کر دیا سورہ احزاب کے اندر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جب اللہ کا یہ اعلان ہو چکا، اللہ کے رسول کا اعلان ہو چکا، تو مرزا غلام قادیانی نے جناب اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور جناب میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے کے سارے میں ہوں۔ حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں، اور خود خدا ہونے تک کا اس نے اعلان کیا۔ تو اتنی بڑی زیادتیاں کی مرزا غلام قادیانی نے، اور یہی وجہ بنی تھی کہ مرزا غلام قادیانی کی یہ جو زیادتیاں تھیں، یہ جو ظلم تھا، اس کو لے ڈوبا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے کافر آئے دنیا کے اندر، بڑے بڑے مشرک آئے دنیا کے اندر، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان آئے دنیا کے اندر، فرعون آیا، شداد آیا، اور قارون آیا، اور بڑے بڑے گستاخ آئے کہ جنہوں نے خدائی تک کے دعوے کیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو ظلم اور زیادتی کی اور جو جھوٹ بولا، آج تک کائنات کے اندر کسی نے ایسا جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جناب بہت سے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن مرزا غلام قادیانی ایک واحد شخص ہے کہ جس نے صرف نبوت کا ہی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے خود محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں خود محمد ہوں جو دوبارہ دنیا میں آیا ہوں تاکہ اشاعت اسلام کروں، کیونکہ وہ جو پہلے محمد تھے وہ دنیا کے اندر اسلام کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر ناباشد۔ اور ان کی معجزات بھی کم تھے، ان کے صرف معجزات 3,000 تھے، جبکہ میرے معجزات 10 لاکھ ہیں۔ اور اس کے اوپر میں مفصل پہلے سٹریم بھی کر چکا ہوں اور تمام دلائل اور حوالہ جات آپ لوگوں کو دے چکا ہوں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کالر بھی آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ ہم کال بھی لیں گے اور آگے گفتگو مزید جاری رکھیں گے۔ لنک میں نے شیئر کر دی ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ پہلے کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو مرزا جونیئر ہے اس کو سپانسر کس نے کیا ہے؟ سپانسر تو بس غیر مسلم طاقتوں نے سپانسر کیا ہے اس کو، اور کس نے کی کرنا ہے؟ قادیانیوں نے، مرزائیوں نے،
एथियस्ट ने, दहरियों ने और ईसाइयों ने, यही लोग हैं जी। जी। और आपसे एक और सवाल पूछना था कि अगर कोई कादियानी मिल जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ कोई यानी कारोबार कर सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं? नहीं, आप सुअर के साथ रख सकते हैं दोस्ती। नहीं। सुअर के साथ कोई उठना बैठना, कोई चाय पानी, कोई रिश्ता नहीं। नाता कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। सुअर तो फिर वो एक अल्लाह पाक की मखलूक है जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी नहीं करते, वो तो जी। जानवर है एक। वो उसकी जो हुर्मत है वो तो अल्लाह पाक ने फरमाई है ना, जी। वो तो अल्लाह पाक ने फरमाई है। तो अल्लाह के कहने की वजह से उसको हम छू भी नहीं सकते, वो नापाक है, वो गलीज है, उसको जी। खा नहीं सकते। लेकिन है वो जानवर, एक जानवर होने की हैसियत से वो अल्लाह रसूल का गुस्ताख नहीं है। लेकिन ये जी। कादियानी, मरज़ई और इस किस्म के जो लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये तो सूअर से बदतर है, जी। दुनिया की बदतरीन मखलूक है। तो फिर किस तरीके से आप हजरात इनसे दोस्ती दोस्ती करेंगे, चाय शाय पियेंगे, हाँ जी, यारियां दोस्तियां, इनके घर में आना जाना, इनसे रिश्तेदारियां किस तरीके से कर सकते हैं? मैं आज तक परेशान हूँ, हैरान हूँ कि जो लोग इन लोगों के साथ रिश्ते नाते रखते हैं। जी। जी, और कुछ? जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाए। अगले दोस्त आते हैं जी, एजाज अहमद साहब, एक्स कादियानी, इटली से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, और सुनाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज भाई, आज स्ट्रीम बड़ी मौके की मुनासबत पर है, आप तशरीफ भी लाए हैं। हाँ जी। शाह जी। मैं असल ना इस टाइम थोड़ा फ्री होता हूँ, अभी 1 घंटे के बाद मैंने जाना है इफ्तारी कराने सबको। अच्छा जी, तो माशाल्लाह इस माशाल्लाह टाइम जी। पे तकरीबन मैं फ्री होता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज मौजू हमारा तो सुन लिया होगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ये जो गंदी तरीन मौत आई थी, ये किस सबब से आई थी? शाह जी, सबब यही था कि जिसने बकवास की या नौज़बिल्ला अल्लाह पाक के खिलाफ अंबिया इकराम कोई नहीं उसने छोड़े, कि जिनके खिलाफ इसने बकवास नहीं की, तो फिर अल्लाह ने तो इसका अंजाम ऐसा ही करना था जैसे ये हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा 25 ही। 25 के 26 मई भी माशाल्लाह आ गई है अब। तो हाँ जी। ये लोग कादियानी लोग तैयारियां करें, अब खुद भी मिर्जा की सुन्नत पे अमल करें और उसी लैट्रीन में डूब के मर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। यहाँ पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू आगे बढ़ा लें। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखता है जनाब, ये रूहानी खज़ैन जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 13 के ऊपर, के गलत बयानी और बुहतान तराजी रास्त बाजों का काम नहीं, बल्कि नहायत शरीर और बदजात आदमियों का काम है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पे एक स्टेटमेंट दी है कि गलत बयानी और बुहतान तराजी ये सच्चे लोगों का काम नहीं होता, ये शरीर लोगों का, शैतानों का काम होता है, बदजात किस्म के लोग जो होते हैं उनका काम होता है। आगे मजीद लिखता है कि वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तहान नहीं हो सकता। ये आईना कमालत इस्लाम सफ़ा 288 के ऊपर और रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा 288 के ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा कि हमें हमारी जांच और पड़ताल करने का एक बेहतरीन तरीका है कि जो मैंने पेशगोइयां की हुई हैं, अगर तो वो पेशगोइयां सच्ची साबित हो जाएं तो मैं सच्चा, और अगर वो पेशगोइयां सच्ची साबित ना हो तो मैं झूठा। क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पे कहा कि मुझे मेरी जांच और पड़ताल करने का बेहतरीन तरीका ये है, मुहिक इम्तहान ये है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो। आइए जी, एक पेशगोई देखते हैं। ये तज़किरा है सफ़ा नंबर 503 के ऊपर। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की एक पेशगोई है 14 जनवरी 1906 की।
मिर्जा कादियानी कहता है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या कहा था कि गलत बयानी और बोहतान तराजी रास्तबाजों का काम नहीं, वो सच्चे लोगों का काम नहीं होता, बल्कि निहायत शरीर और बदजात आदमियों का काम होता है। और ऊपर से मिर्जा कादियानी ने यह कहा कि हमारी जांच और पड़ताल अगर तुम लोगों ने करनी है तो हमारी पेशगोइयों को देख लो और हमारा इम्तहान कर लो। अगर तो हमारी पेशगोइयां सच्ची साबित हो जाएं तो मैं सच्चा, अगर पेशगोइयां झूठी साबित हो जाएं तो मैं झूठा। अब सिर्फ मिर्जे की एक पेशगोई मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, ज्यादा पेशगोइयां नहीं। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी को मक्का और मदीना देखना तक नसीब नहीं हुआ, जाना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी सरहद के पास भी नहीं पहुंचा मिर्जा गुलाम कादियानी। मक्का और मदीना जाना नसीब तक नहीं हुआ और मिर्जा गुलाम कादियानी लाहौर के अंदर टट्टी और मूत्र करते हुए मर गया 26 मई को। अब वो वापस हम आते हैं मिर्जे की जो 2 इबारतें मैंने आपको सुनाई थी कि गलत बयानी ये सच्चे लोगों का काम नहीं होता, बल्कि शरीरों का, शैतानों का और बदजात आदमियों का काम होता है। तो मिर्जे कादियानी ने ये गलत बयानी की, ये गलत बयान है मिर्जे गुलाम कादियानी का, ये गलत बयानी है मिर्जे गुलाम कादियानी की कि हम मक्का में मरेंगे या मदीने में। हालांकि लाहौर में मिर्जा कादियानी टट्टियां करते मर गया, ये गलत बयानी थी। और मिर्जा कादियानी बकौल खुद मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा और कज़्ज़ाब साबित हो गया और शरीर साबित हो गया और बदजात साबित हो गया, क्योंकि ये मियार खुद मिर्जा कादियानी ने बताया था। और फिर जो अगली मैंने इबारत आपको सुनाई थी रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 288 की कि हमारी जांच पड़ताल अगर किसी ने करनी है तो हमारी पेशगोइयों को देख लो, अगर हमारी पेशगोइयां सच्ची साबित हो जाएं तो हम सच्चे, अगर झूठी साबित हो तो हम झूठे। तो मिर्जे की सिर्फ एक पेशगोई हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इस एक पेशगोई की रूह से मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब साबित हो गया, दज्जाल साबित हो गया, शरीर शैतान साबित हो गया, बदजात साबित हो गया। जी इजाज भाई, अब आप बात कर। मैं ये कहने लगा था एक पेशगोई तो मिर्जा साहब सांप की पूरी हुई थी, वो पता क्या, जी गंदगी का कीड़ा गंदगी पे मरता है। ये मिर्जा साहब ने लिखा किसी किताब में, अभी मुझे वो याद नहीं है, मेरे पास वो पेज भी पड़ा हुआ है। तो ये तो उसकी पेशगोई पूरी हुई थी कि गंदगी का कीड़ा था, गंदगी में ही मरा था, क्योंकि उसने नौज़बिल्ला अंबिया के खिलाफ और अल्लाह पाक के खिलाफ इतनी बकवासियात की हैं अपनी किताबों के अंदर। रात को उसका एक फॉलोवर आया हुआ था उस चैनल पे जिधर रात में थे हम लोग, तो वो बंदा, हालांकि किसी ने नोट नहीं किया, वो लफ्ज सिर्फ उसका मैंने नोट किया, उसने, उस बंदे ने, उसका फॉलोवर था मिर्जे का, उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि आप लोग पागल हैं, गालियां देने वालों को कौन पागल फॉलो करते हैं। तो जब स्ट्रीम बंद हुई सबको मैंने बोला, आप जो लोगों ने एक बात मेन पॉइंट इसका नोट ही नहीं किया, बोलते हैं क्या, मैंने कहा ये बात कि इस बंदे ने अपने मुंह से बोला कि गालियां देने वाले को कौन फॉलो करता है। तो सब हंस रहे थे, बोलते हैं वाकई ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है। ये कादियानी मरज़ई अंदर से इजाज भाई सब जानते हैं, सब जानते हैं, इनको पता है मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब फ्राडिया था और इसकी फ्राडियों और दज्जालियों की वजह से इसको ये सजा मिली। हाँ जी, और ये लाहौर के अंदर टट्टियां करते हुए लैट्रीन के अंदर मरा था, जो ये मरज़इयों को पता है, सब पता है इनको, लेकिन बस वही रोजी रोटी का मसला है इनका और पेट पूजा लगी हुई है इनकी, और लड़कियों के मसले हैं और वो लालच होता है इनको वीजे का, बस यही मसले हैं और कोई नहीं, दुनियादारी रखी हुई है। सियालकोट कैंट मिर्जवाड़े का वो था, सदर था इसका, इंसारुल्लाह का नहीं, हाँ सदर था जमात का, कैंट वाले मजवाड़े सियालकोट के अंदर। मेरे अपना क्या नाम था उसका, दीन मोहम्मद पट्टी,
उसने अपने खुद अपने मुंह से, पता है मुझे क्या बताया था, बोलता है जब मिर्जा मरा था ना तो इसको कादियान लेके जाने लगे थे, तो जब लाहौर के वो अंदर वो रेलवे स्टेशन के अंदर ला के उसकी वो रखी ना मैयत, तो पूरा लाहौर ने ऊपर से कचरा बरसाया था मिर्जा के ऊपर। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही वो जिस वो माल गाड़ी के अंदर दूसरी कोई ट्रेन के अंदर इसको जगह ही नहीं मिल रही थी जी, पैसेंजर ट्रेन के अंदर, वो उन्होंने कहा ना भाई इस बदबूदार को, इतना ताफुन उठ रहा था इसकी लाश से, तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर इसकी लाश को नहीं रखने दिया इन लोगों ने। तो फिर वो जनाब एक आई वो माल गाड़ी जो होती है, तो माल गाड़ी के अंदर वो नहीं होता, क्या इसका नाम है, जो खुराक होती है इसकी, ये जानवरों की खुराक जिससे बनती है, हड्डियां वगैरह, हड्डियां नहीं होती, हड्डियां जानवरों की हड्डियां, तो वो वाली माल गाड़ी के अंदर वो था, वो पहले ही बदबू उसके अंदर इतनी, और उसके अंदर नुक्कड़ में इसकी लाश को रखा गया। अच्छा हुआ ये कि आगे जाके वो ट्रेन ही खराब हो गई जी, यानी जंगल के अंदर ट्रेन, अब ये इनको लाहौर से गुरदासपुर लेके जाना था और कादियान लेके जानी थी, तो वहां रास्ते के अंदर ये ट्रेन खराब हो जाती है, पहले ही मुतअफ़न एक इसकी लाश थी, और ऊपर से जनाब 2 दिन तक वहां पे ये बदबू के अंदर, यानी ऊपर से वो गाड़ी के अंदर वैसे ही बड़ी बू आ रही थी, और ऊपर से मिर्जे कादियानी की बू, ओए ओए ओए, और क्या हाल क्या हुआ होगा, यानी मिर्जा तरक गया था। हाँ जी, इजाज भाई मौजूद है, चले गए जी? इधर ही हूँ। अच्छा जी, तो इजाज भाई कोई और भी कलर हम साथ ले लें फिर? हाँ जी जी कोई मसला नहीं, ले शाह जी। हाँ जी, मियां रियासत साहब आज बड़े अरसे बाद आए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शाह जी क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। मियां जी किथे गुमसुम हो गए तुसी, किथे गैबो गैब? शाह जी बड़ा मसरूफ सा, एक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ प्रोग्राम बात ਚ ਦੇਖ ਲੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ इंशाल्लाह आइंदा तो मैं गैरा जनाब माफी। ਤੇ जनाब ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ 17 ਦਿਨ। ਹਾਂ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਝੂਠਾ ਦਜਾਲੀ ਮਸੀਹ ਮੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਬ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ। ਝੰਡੀਆਂ ਝੁੰਡੀਆਂ ਲਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਣ, ਕੋਈ ਲੈਟਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਉਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ। और वैसे भी मिर्जा गुलाम कादियानी ने माशाअल्लाह कायनात और माफ ये आज कोई चीज ऐसी छड़ी ही नहीं जिदा उन्हें ऐलान ना किया कि मैं भी है वहां। हाँ जी, कोई दुनिया की कायनात कितने कितने बेवकूफ मरज़ई लोग हैं, इनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये इतने बाबख्त है, मलंग मलंगड़ियां जो है इतने बेवकूफ है, फिर भी उसको मानते हैं। ठीक है ना? नहीं मानते तो है ना जी, मानते तो वो देखें जो हिंदुओं के वो बुत हैं तो वो बुतों को नहीं मानते, वो गाय को। कल मैं देख रहा था वो एक वो कह रहा था जनाब लो जी कोरोना का इलाज आ गया है, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कोरोना का इलाज आ रहा है, वीडियो मैंने बड़े गौर से देखी। उसने जनाब वो गाय का मूत्र निकाल के कहने लगा इसको एक सांस के अंदर पीना है, और उसने कोई जंतर मंतर बताया था कि ये पढ़ना है। अच्छा, वो एक सांस में पीने के बाद उसने पास ना वो गाय की जो होती है ना गोबर, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रखी थी, तो 3 गोलियां उसमें से निकाल के कहता है इसको भी एक सांस के अंदर ही चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद कहने लगा कि इस मेरे पैगाम को इसको यूरोप में फैलाओ, अमेरिका को, उनको जरूरत है। अच्छा, मुझे ना फौरी तौर पे ना याद आया, मैंने कहा यार ये नुस्खा तो बड़ा कमाल का हथे आया है। ये तो यानी गाय को अपना वो पेशवा मानते हैं, तो गाय के साथ ये सलूक करते हैं। तो मिर्जे गुलाम कादियानी
को जनाब ये अपना मसीह मूत और बहुत कुछ मानते हैं, तो उसका तो मूत्र भी बड़ा मुकद्दस ये समझते होंगे, उसकी टट्टी को भी बड़ा मुकद्दस। वो चूंकि दिन और रात 100 दफा टट्टी और मूत्र करता था, तो यकीनी सी बात है कि वो 100 दफा जब टट्टी मूत्र होता होगा तो इन लोगों ने प्राइवेट में मैसेज देखें। आ गया इसके मानने वाला एक। अच्छा, मानने वाला आ गया, प्राइवेट में मैसेज है। अच्छा, मानने वाला आ गया है। और यार ये असल में मानने वाले जो है ना ये दौड़ जाते हैं। अब देखें वो दौड़ गए ना, यही मसला होता है। तो दम नहीं होता तो क्यों आते हो इधर? ये दौड़ गया, अभी मैं तुम्हारे अंदर दम नहीं है इतना तो क्यों आते हो? 2 लफ्ज ले टिक टिप टिप टिप, क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हिम्मत है तो ऊपर आओ। ये औकात इनकी यही औकात, इसको पता है ये मूत्र टट्टी मैंने अभी खोल के रख देनी थी शीशी। हाँ जी, तो इन्होंने को मूत्र संभाला होगा मिर्ज़ा कादियानी का। यार तुम भी कोई वीडियो वगैरह बनाओ यार, कोई वीडियो बनाओ। मिर्जा मसरूर, खलीफे मिर्जे मसरूर, माजरत चाहता हूँ, एक इधर बात याद आ गई है। ये 1996 के अंदर ना इनका जमात का सदर था। सुने तो सही ना जी, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 471 40 नंबर 4, बसा औकात 100 दफा दिन 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है। ओए इन्ना मूत्र ते सूर नूं नहीं आउंदा है, शुगर वालियां नूं नहीं आउंदा। कोई शुगर वालियां नूं ते 4-5 वारी आंदा है, ते जे 6-7 वारी आ जाए ना ते उन्हां दी बहजा हो जाए, उंज मरन वाले हो जाना। यकीन मनो, ये ते यकीन है ना, सूरां नूं भी इन्ना नहीं आउंदा जिन्ना तुसीं ए वेखो सही। ओए ए संभालिया जे इन्होंने संभाल के रखा होगा। हां जी जी, मैं अगले दिन सुन रहा सा तुहाडा प्रोग्राम ते खरगोश के हवाले ने कह रहे सो खरगोश 16-17 दफा सारी दिहाड़ी सब जानवरों तो ज्यादा वो खरगोश ही करता है, ते खरगोश तो भी वध गया जी। मैं तो कहना सूर तो भी वध गया, सूरा तो भी वध गया जी। देखो सही 100 दफा टट्टी बूतर ओए मूत्र वाली सरकार, और सामने आओ तुसी मर जाइयो, ओ मरब्बियो सामने आओ, अज डुब मरो तुसी मर जाइयो। ए पुत्र 26 मई तक तुहानू असीं टिकन ते नहीं देना। 26 मई तक तुहानू टिकन दे मूत्र ही कर देना तुहानू। जिहड़ा मिर्जा कादियानी मूत्र टट्टी करता रहा ना, तुहानू इहदे विच गोते देने ने। आ जाओ सामने मर जाइयो। मैं शाह जी गल करन लगा तबारक दी। जी जी 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਮਾਨ ਅਮਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਜਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਵੇਖੋ शाह जी माजरत चाहना ना भुल गया मैनू। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਹੈ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਕੂਰ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕੂਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਬਾਰਕ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਬਾਰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਆ 2 ਇੰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਮ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਰੋਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਥਾਣ ਹਨ ਉਂਝ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਮਾਲ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਨਾਬ, ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਮਾਲ ਗੋਟਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, तो आगे रियासत साहब कोई बात करेंगे? और भी कलर हैं, फिर किसी और को भी ले लें। जी शाह जी एक हाल मेरे दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਟਿਕਵਾ ਜਾ। जी 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 शाह जी, मैं कह रहा कि जिवें मिर्ਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੁਲਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੈਰ ਮਹਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ है? ओए होए, बड़ा सवाल कर दिया आपने रियासत साहब, दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया आपने। जो नुसरत जहां बेगम थी वो तो जनाब अय्याश खातून थी। अय्याश ऐसी थी कि वो पर्दा पुर्दा कोई भी नहीं करती थी, नंगे सारी, और सारे वो जिस्म के जो अजाब वगैरह होते हैं वो बाजारों के अंदर खुले डुले घूमती थी। तो एक दफा वो बाजार के अंदर घूम रही थी, मिर्जा कादियानी को रोड पे खड़ा करके ना कोने में किनारे पे, तो खुद बाजार के अंदर घूम रही है। मुरीदों ने आके बताया जी हजरत जी नच्छो बेगम जो है ना वो बाजार में घूम रही है, और मर्द जो है मर्द हजरात बड़ी टिकटकी बांध के उसके हिसाब किताब को देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लगी है। तो हजरत जी शाह जी माजरत शाह जी माजरत, ये जो आप बता रहे हैं ये होगा, लेकिन ये रेलवे स्टेशन की बात नहीं है? नहीं जी, पता नहीं, रेलवे शायद रेलवे होए, बरल हवाला लग जाएगा। बाजार का हवाला है शाह जी, बाजार का भी है, रेलवे का भी है। चलो रेलवे का होएगा, चलो लभ लेने, मैं उन्हां तक गल कर लाना ते मैं हवाला भी लभ लेना। अच्छा जी, तो अब ना वो मटर गश्त कर रही है, तो वो एक आया है मुरीद आके कहने लगा हजरत जी इसको समझाएं कि बंदे दी धी बन जाए ते पर्दा करे। तो हजरत जी क्या कहते हैं? हजरत जी भी आगे बड़े बाहया, हाँ जी, हयादार। तो वो कहने लगे जाओ जी, हम ऐसे पर्दे को नहीं मानते ऐसे पर्दे को हम नहीं मानते। हाँ जी, वो बड़ा बाहिया आदमी था जनाब, बड़ा गैरतमंद किस्म का मर्द था। हाँ जी, वो कहते जाओ हम ऐसे पर्दे को नहीं मानते। वो कहते मैंने खुद इतनी रखी हुई है, तो मेरी किसी को जाती है तो फिर की केड़ी गल है, तो मैं भी तो इन्नियां बड़ियां रखियां ने। हाँ जी, 15-20 तो उन्हें कमरे में रखियां सन। उसने कहा 3 साल ते अगले शाही महल्ले भी आके रहा ही ना। आहो, शाही महल्ले हीरा मंडी उन्हें बकायदा मकान बुक कराया सी। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਡਰਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, AK ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਵੀ, ਜ਼ੈਤੂਨ FM ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੰਦੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2-3 ਸਟਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤਹਰੀਰ। ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਹੀ ਤਹਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਅਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂ। ਅਕਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ।
این جی ہے جی، این جی ہے۔ یہ لے جی، یہ حوالہ جو تھا جائیں جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں، ہاں جی یہ حوالہ بھی سماعت فرمائیے، اور یہ لے جی، یہ لے جی، یہ سیرت المہدی صفحہ 56 حصہ اول روایت نمبر 77 بیان کیا مولوی، لو جی مولوی نور الدین آ گیا جیتھے بھی، لو روایت بھی مولوی، اور مولوی نور الدین کہنا ناسی میری یہ لونڈی ہے نصرت جہاں وہ آندا ہونا نا میرے مال نو کو اور نہ ویکھے۔ آہو ویکھو صحیح نا، روایت بھی مولوی نور الدین دی جے، راوی بھی وہی جے۔ اچھا جی، مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے ایک دفعہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کسی سفر میں تھے، اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی، آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے۔ یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم صاحب، جن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت صاحب بہت لوگ بہت ہیں، بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب مسیح موتر علیہ شلوار نے فرمایا جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبدالکریم ٹھیٹ ہو کے واپس آ گیا، انہیں کہ میری بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ نیچے کی طرف آئے، میں نے کہا مولوی صاحب جواب مل گیا جے، کیا جے میں سے پہلے کہنا دے بڑا بغیرت آدمی یہ تے کل نہ جائی تینوں اج دے جواب ملدا ہے۔ ایک منٹ شاہ جی، یہ نیچے ایک عمران کالو، میں 1997 میں خود انٹر ہوا تھا ان کی تمہاری چال بازیاں دیکھ کے سمجھا، اور جب مرزے کی کتابیں پڑھی تھی میں نے خود چھوڑا ہے، جا کے اب بھی جماعت سے تصدیق کروا لے، آج بھی ان کے پاس سارا کچھ میرا ہے۔ صحیح ہے، 90 کراچی کے اندر والی جو مرزواڑا ہے نا، ادھر سارا ثبوت سیکٹری مال کے پاس، سیکٹری کے پاس سارا کچھ میرا پڑا ہوگا۔ جماعت میں نے ایسے نہیں چھوڑی، مرزا کی کتابیں پڑھ کے چھوڑی ہیں، جماعت والوں نے مجھے نہیں نکالا۔ صحیح ہے، ایک منٹ جی ٹھہرو تو صحیح نا، کالو صاحب یہ عبارت تو پڑھ کے سنا دیں ذرا، یہ کالو صاحب، عمران کالو صاحب، عمران کالو صاحب تو اڑ گئے جی، دوڑ گیا جی، دوڑ گیا جی، وہ بھی دوڑ گیا، وہ بھی دوڑ گیا، انہوں نے اج ٹکنا نہیں اتنے ہے بردیا نے۔ قاسم چودھری دیکھ رہے ہو تو کوئی دم تے کر یار قاسم، قاسم تیرا نیٹ نہیں صحیح بھائی، قاسم تیرا نیٹ نہیں بھائی صحیح، کوئی صحیح جگہ پہ پہنچ جہاں پہ نیٹ صحیح ہو، آواز نہیں صحیح، آواز صحیح نہیں آ رہی بھائی۔ قاسم کال کاٹ کے دوبارہ ہو۔ اچھا جی، اور کسی بندے کو لے لیں یار، کوئی مرزئی تو نیچے مجھے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، چلیں یہ ایک نئے بندے ہیں۔ السلام علیکم جی، 3 استری آئے ہیں، ان کو بھی لے لیں۔ وہ تو عبدالسلام بھائی ہیں، ان کو لے لیں جی۔ یہ شاہ صاحب آئے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے جی، فرمائیے جی۔ میرا ایک تمام آپ کے جو یہ پروگرام ہے، تمام قادیانی جو ہیں جو دنیا میں کہیں بھی، اور خاص طور پہ میرے ان کی ایک وہ ہے مشورہ ہے کہ 26 مئی تک ایک تھیلا گوبر کا لے کے جا کے اور لیپیں قبر پہ اس کی منوس کی، اور ایک گوبر فیسٹیول کا انعقاد ہونا چاہیے، میرا مشورہ ہے۔ نہیں گوبر کیوں، اس کا موتر ہی کیوں نہیں، اس کی ٹٹی کیوں نہیں؟ نہیں تو اسٹارٹ تو ہم اس سے ہی نہیں ہے نا، اسٹارٹ اسی سے نہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جیسے دن بڑھتی چل جاتے ہیں وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میں
जय सिंह बहादुर कृष्ण कन्हैया हूँ, यानी हिंदुओं का अवतार। क्रिश्चियन होने का दावा उसने पता क्या किया था? हिंदू खुद बोलते हैं क्रिश्चियन हमारा जो था वो मक्खन चोर था, तो मिर्जा पेंशन चोर था, तो जाहिर है उसने फिर वो काम तो ऐसा करना था ना। नहीं तो उसके चढ़ावे चढ़ाने चाहिए वहाँ पे, मेरे तो ये गुजारिश है तमाम कादियानियों से। चढ़ावे भी चढ़ाते हैं इनको, ये आपने मशवरा भी सही दिया है कि चूंकि हिंदू वो गाय का गोबर वगैरह खाते हैं, मूत्र पीते हैं, तो इनको मिर्जा कादियानी का जो है ना वो इसकी कब्र के ऊपर जाके कम से कम गाय का ही कोई गोबर क्या लेप करें और उधर मूत्र वर्षण करें। हाँ जी। नहीं मुफ्ती साहब, असल में कब्र बन गई गलत जगह, कब्र बननी चाहिए थी किसी कमेले में या किसी जो जहाँ पे गाय भैंसे रहती है ना, वो जगह सही। तो ये तो वहीं पे ही है ना, आपने शायद वो गूगल मैप आप देखिए और आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, बल्कि मैंने वो वीडियो अपने चैनल पर भी लगाई है। इसका जो मकबरा है ना उसके साथ ही रूढ़ी है, यानी कादियान की सबसे बड़ी रूढ़ी जो है इसके मकबरे के बिल्कुल साथ है। यानी वो समझ लें कि कोई कितने वो बनेगी अर्जी मुझे तो नहीं समझ आई, लेकिन वो मुझे जो लगता है वो वीडियो के अंदर लग रहा है कोई 30-40 कनाल 30-40 कनाल जगह के ऊपर वो रूढ़ी है। तो यानी कादियान के बाहर के इलाके का भी गंद वहां आके लोग डालते हैं। चले अच्छा करते हैं ये काम तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल। जी जी बिल्कुल सही। ये तो कोई जज़ाकल्लाह कोई इंडिया का अगर कोई है भाई हमारी बात की तस्दीक करे या नफी करे तो कोई है तो आइएगा। ये कहते हैं भाई वो इधर नजदीक ही है कादियान से, लेकिन वो भी पता नहीं आए हैं या नहीं। अब्दुल सलाम साहब आगे दोबारा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब, आपके नेट का कोई इशू है यार? इनका नेट जी, इनका नेट का इशू है, कोई नेट का इशू है? नहीं, नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक हवाला यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये देखिए मिर्जा कादियानी के ये दावाजात देखिए, रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 और सफ़ा 229 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि कृष्ण रुद्र गोपाल तेरी महमा गीता में लिखी गई है। ये अपने आप को कहता है, सो मैं कृष्ण से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैं इसका मजर हूँ। लो नवी सुन लो, मदर है ना वो मक्खन चोर सी, ये पेंशन चोर है, तो मदर पेंशन चोर है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है जी मैं मिट्टी का कीड़ा हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 738 के ऊपर, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ। लो जी, किरमे खाकी कहते हैं मिट्टी का कीड़ा वो जो होता है गंडोया, और ना आदमजाद हूँ यानी बंदे का पुत्र नहीं जे मैं है जी। तो कहता है मैं गंडोए दा पुत्र शाह जी, मैं गंडोया हूँ और बंदे का पुत्र नहीं जे। ये मैंने पंजाबी के अंदर ट्रांसलेट किया है, अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो आ जाए कोई कादियानी मर जाएगी। आगे जी ये तज़किरा के सफ़ा 568 के ऊपर कहता है अमीनुल मलक जय सिंह बहादुर, ये भी मिर्जा कादियानी। आगे रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 522 के ऊपर कहता है ये दावा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला ने बार बार मेरे पर जाहिर किया है कि जो कृष्ण आखिरी ज़माने में जाहिर होने वाला था वो तू ही है, आर्यों का बादशाह। अब ये जो आर्यों का बादशाह है, आर्या हजरात जो है वो तो गाय का मूत्र पीते हैं। तो मरज़इयों से मेरा ये सवाल है कि तुम गाय का मूत्र पीते हो कि नहीं पीते? शाह जी बंदा एक शेर खान आया जे इंडिया दा, उन्हें मैसेज थले कीता मैनू लवो उते। शेर खान साहब तो अभी तक कोई स्ट्रीम लगता है फुल है, तो शाह जी बंदों को रियासत साहब आप जरा माइनस हो जाएं। कोई बात आप जी जी नहीं, जज़ाकल्लाह आप ना यूट्यूब पे चले जाएं ताकि कोई और नया बंदा आ सके। साहिर खान है, सॉरी मादर चाहता हूँ, साहिर खान भाई हैं, ये ऊपर ही हैं। ये साहिर खान साहब तो कोई भी यहाँ पे अभी तक तो नहीं आए, तो बहरहाल ये साहिर खान भाई स्ट्रीम में जगह हो गई, आ जाएं। हैदर साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ सलाम जनाब, जी आवाज आ रही है जी। मुफ्ती साहब
مفتی صاحب آج اس پروگرام میں یہی کہوں کہ قادیانی رات کو چادریں وغیرہ لے تو لیٹرینوں کے اوپر جو ہے کھائیں اور حضرت آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، نیٹ کا کوئی ایشو ہے حیدر صاحب، معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں سمجھ آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے قاسم چودھری صاحب دوبارہ آئے ہیں، السلام علیکم۔ اتر سوراخ بند کر چھڑے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں ذلیل تو بھی تو بڑا ذلیل ہے۔ وہ تیری وہ یہ کون آ گیا؟ وہ شاہ جی مائنڈ روسٹر ہی یہ تھا، یہ کل ادھر بھی یہی ویڈیو چلا رہا تھا۔ اچھا اچھا وہ یہ یعنی فیک آئی ڈیز بنا کے آ رہے ہیں نا؟ جی ہاں فیک آئی ڈی بنا کے آ رہے ہیں۔ اچھا جی یہ بابا جی آئے ہیں جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم بابا جی۔ بابا جی آپ کا آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ کی، آپ کا شاید نیٹ کا ایشو ہے۔ بابا جی کا نیٹ کا ایشو ہے۔ اگلے دوست حیدر راجپوت صاحب دوبارہ آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی اب صحیح آ رہی ہے آواز مفتی صاحب؟ جی آواز صحیح ہے جی، فرمائیں جی۔ جی آج کے پروگرام پہ میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ابھی یہاں پہ آپ نے ایک حوالہ جو ہے سوال ایک منٹ، آپ کے سوال سے پہلے یہ ابھی سوراخ بند کرنے کا وہ کہہ رہا تھا مائنڈ روسٹر، تو میں بتا دوں کہ وہ کون سا سوراخ تھا جو بند ہو گیا اور بعد میں کھل گیا تھا۔ یہ سوراخ جڈا تکا تنیا جاندا سی نا روندا، بعد دوبارہ وہ نکلدا سی تو ادو بڑا تننا پیندا سی۔ یہ لے جی یہ لے جی، ہم ادھار نہیں رکھتے فوری طور پہ سرے دست، یہ اسلامی قربانی ہے۔ یہ سوراخ جو کھولا تھا وہ یلاش نے کھولا تھا، صفحہ 12 کے اوپر کہتا ہے جیسا کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، جنانی بن گئے جی مرزا جی، اور کالا کالو یلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ سوراخ جب اس نے کھول دیا سوراخ، تو پھر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 242 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کھل گیا جے سوراخ میرا، 16 دن کھل گیا جے، 16 دن تک پخانے کی راہ سے خون آتا رہا، سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔ ہاں جی مفتی صاحب اگر یہ سوراخ بند تھا تو یہ جو دن میں 100 بار ٹٹی موچ کیا کرتا تھا یہ پھر کہاں سے کیا کرتا نہیں تھا؟ سوراخ تو یلاش نے کھول دیتا نا جی، وہ یلاش نے کھولا تھا، بند تھوڑی تھا یار، بند تھوڑی تھی۔ سوراخ کھلنے کی وجہ سے تو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی متر آ رہے تھے، کھل گیا سی نا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ پتر اے نا اے مائنڈ روسٹر ہے جی، اے سانو یاد کراندا ہے کہ مرزا دا سوراخ بند نہیں کھلا سی۔ ہاں جی بہت شکریہ جی مائنڈ روسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، یاد کرواتے رہیں اسی طریقے سے اور مرزے کو چھتر پڑواتے رہیں۔ وہ مربی کا دا جڑا مرزے دی مٹی پلیت نہ کروا کے جاوے، وہ مربی ہوئی کر ہے جڑا چھتر دا پوائے مرزے نو۔ ہاں جی شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی حیدر بھائی اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ یار پھر نیٹ کا دوبارہ پھر نیٹ کا ایشو ہو گیا۔ زبیر صاحب آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ زبیر صاحب وعلیکم السلام شاہ جی، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ شاہ جی میرے کو ابھی 2 منٹ ذرا دو گے، میں ذرا کچھ کام کر رہا ہوں، 2 منٹ بعد میں دوبارہ فل پہ لے جی 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 کوئی بات نہیں۔ مدنی صاحب آئے ہیں جی، السلام علیکم۔ مدنی صاحب مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے۔ مدنی صاحب، غلام مدنی صاحب، ہیلو۔ اچھا جی یہ کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اچھا جی یہ کامران قادری صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام قبلہ محترم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ پاک کا سونے کا بڑا فضل احسان ہے جی۔ قبلہ شاہ صاحب یہی بات پوچھنا تھا کہ یہ جو مرزا کانا جو تھا یہ انسان بھی تھا کہ کیا چیز تھا؟ کیونکہ وہ
कभी कीड़ा बन जाता है, कभी किरमे खाकी बन जाता है, कभी वो गोपाल रामपाल पता नहीं क्या क्या बन जाता है। तो ये है असल में क्या क्या था वो? ये आज तक हम भी बड़दइयों से पूछ रहे हैं ये बला क्या थी। ये समझ नहीं आ रहा ये इंसान भी था कि क्या चीज था, ये कुछ किसी कैटेगरी में आएगा। इंसान तो नहीं, वो कहता है ना मैं बंदे का पुत्र नहीं जे है दादब जाद। ठीक है क्या शाह साहब, बस अभी पूछना सी कि यदि कोई डेफिनेशन पता लगे ना फिर अगे ते करिए कुछ पता करिए कि है की सी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ किसी नहीं पता चलिया कि मैं जम की बैठी नहीं शाह जी उन्होंने क्या होना इब्न शैतान मिर्जा कादियान मिर्जा कादियान इब्न शैतान। शाह जी ये बाबा जी मेरे साथ ऐड हैं व्हाट्सएप पे, उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा शाह जी से पूछें कि ये जो मरदई लोग हैं ये मिर्जा साहब की तारीख वफात और पैदाइश पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं बात करते? ऐसा मौत पैंदी है नोनो अल्लाह दे बंदियो, ए फांसी दा फंदा है इन्हां दे। ओ मिर्जा कादियानी इन्हां नु फसा गया है, ए बेशर्मा नु फसा गया है। वो ये लोग डरते हैं कि कहीं पे मिर्जे की मौत पे बात की तो अगर तो मौलवी को पता हुआ ना तो उसने बड़ा जलील करना है। इसी वजह से ये किसी मौलवी से बात नहीं करते, ये आम भोले भाले लोगों को घेरते हैं। ये है असल में, इनको पता है छितर बड़े पड़ने जलील होंगे हम कि मिर्जे की इतनी गंदी मौत। कायनात के अंदर फिरौन को भी ऐसी मौत नहीं आई थी यार, वो नमरूद को भी ऐसी मौत नहीं आई, अबू जहल अबू लहब को भी ऐसी मौत नहीं आई। कायनात के अंदर किसी जलील को ऐसी मौत नहीं आई जैसी मिर्जे कादियानी की मौत है। शाह जी आपको ये शायद याद होगा, मैंने आपको बोला था कि हाफिज़ कुरान है वो इनके जाल में फंसने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने एक दिन ना बड़े तरीके से समझाया। मैंने कहा तू बोलता कि मुझे वो फलां जगह ले जाएगा, फलां जगह ले जाएगा। मैंने कहा मैं कसम देता हूँ वो कहीं भी तुझे नहीं लेके जाएगा बगैर पैसों के। मैंने कहा जा उसको बोल मुझे लेके जा। तो जब वो गया अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी 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 हाँ जी, वो आप इसके मिर्जा के मौत के ताल्लुक से बात कर रहे थे ना? जी 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 उसका वो आपने पहले तो बताया कादियान देखा हुआ है? नहीं देखा तो नहीं, गया तो नहीं एक्चुअली। अच्छा हेलो सुनाई दे रहा है क्या? जी जी गया नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन वो सालाना जलसा उनका जो चलता है उसके बाद ताल्लुक से सुना है। अच्छा क्या सुना है? और वो लोग जाते हैं, सालाना जलसा जो होता है हमारे मोहल्ले में है बहुत से गिने चुने मिर्जाई, लेकिन वो जाते हैं हर साल। जो उनका होता है वो क्या है, बेहश्ती मकबरा कुछ है ऐसा कुछ। हाँ वही उनका जो खबर है, उधर जाके उसका सजदा करते हैं लोग। बाद में वो गुलाम अहमद के ये करते हैं, ऐसा कुछ उनका जो फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं। और कुछ बहुत से लोग तावीलें भी निकालते हैं। एक्चुअली वो करते हैं कि वो लोग वो टॉयलेट में भरा था, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं टॉयलेट में नहीं भरा था, वो तावीलें निकालता है नहीं उनकी मौत वैसे नहीं हुई, ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं। इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है आरजी टॉयलेट का इंतजाम चारपाई के करीब किया था और मिर्जा साहब उधर से उठने लगे थे, उठना नसीब नहीं हुआ, उसी पे गिर के मर गए थे, जाके यलाश को मिल गए थे। वही ये लोग तावीलें निकालते हैं सिर्फ बचाने के लिए, या कि वो नहीं उसकी नहीं हुई थी, वो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ। ये है कि साहिर भाई आइंदा स्ट्रीम हम कर रहे हैं 26 मई के दिन, हो सकता है हम मुफस्सल स्ट्रीम करें, उससे पहले भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम वो तमाम हवालाजात दिखाएंगे, आगे आप इंतजार कीजिए, आइंदा आने वाली स्ट्रीम के अंदर तमाम हवालाजात होंगे। जी और एक बात ये साहब, ये शाह जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अभी जाके इफ्तारी का बंदोबस्त करने लगा हूँ। ओके जी अल्लाह। हाँ जी मुफ्ती साहब, ये अभी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है
इसमें थोड़ा पंजाबी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में हमें पंजाबी समझ में नहीं आती। एक्चुअली उर्दू में हो तो गुफ्तगू अच्छी होती है। इंशाल्लाह मैं ना वैसे कोशिश तो ये पूरे अक्रॉस ये तो पूरे वर्ल्ड में सुनाई देता है ना लाइव स्ट्रीमिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही। तो हमें समझ में नहीं आता, पंजाबी समझ में नहीं आती, इसीलिए उर्दू में हो तो। मेरे पास भी कुछ किताबें थे उसके मौत के ताल्लुक से, और भी है डिस्कशन करने का। ऐसा कि वो लोग जो उनका जलसा होता है, मेरे एक से बात भी हुई थी एक मिर्जाई से, उसके ताल्लुक से उसके साथ डिस्कशन भी हुआ था कि वो लोग जो जलसा होता है उनका सालाना जलसा होता है, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में करते हैं, सिर्फ कादियान में नहीं, गुरदासपुर में नहीं, पूरी वर्ल्ड में होता है उनका। वो लोग जाते हैं अब, और उनसे और भी कुछ बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उधर बदबू भी आती है, ऐसा कुछ उसी ने बताया था मेरे को। जो उनका जो बेहती मकबरा है उधर बदबू भी आती है, ऐसा नहीं है कि वो खुद उसने खुद बताया था एक जन्म। अच्छा, उसने बताया था कि वहाँ बदबू आती है। हाँ, उधर बदबू आती है। जैसे ही आप एंटर होते हो, जैसे ही दाखिल होते हो, वो उसने खुद बताया कि जो उधर उनके जो जानी मानी शख्सियत जो भी कादियान के है, वो मिर्जाई, उनके उधर दफन है वो। और बोलता है ऐसा नहीं है कि वो उधर अजीब सी बदबू आती है, वही बता रहा है। मैं बोला ये बदबू ही तुम्हारे मिर्जा गुलाम होने की, इसकी जहन्नमी होने की सबसे बड़ी दलील है, वही बताया मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, उधर उसके खबर की जैसे एंटर करते उसने बताया, एक्चुअली मैं देखा नहीं कि उनसे बातचीत होती है हमारी, डिस्कशन मतलब ऐसी बहस होती रहती है रास्ते में। वो उनकी एक इधर मस्जिद भी है अहमदिया कम्युनिटी की, अहमदिया कम्युनिटी में की, जहाँ मिर्जा क्या नाम है उनका, जो 5वां खलीफा है, क्या नाम, मसरूर, मिर्जा मसरूर अहमद। हाँ, उसी के नाम की उसकी फोटो से भी लगी है, मतलब पास है वो, मतलब घर से थोड़ी दूर है, लेकिन वो लोग पूरा ऐसा डिस्कशन, ऐसा लोगों को खींचना, अपनी तरफ खींचना, मीठी मीठी बात करना, अपनी तरफ से खींच लेना उनको। वो लोग क्या है, और एक वो लोग पैसों की कमी नहीं है उनको, वो लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और अपने में दाखिल करना चाहते हैं। ऐसे ही। हाँ, उनका एक ही है, वो अपनी तरफ दाखिल करना चाहते हैं। और कैसे अच्छी बात से आप उनसे गाली गलौज भी करो, आप उनको बुरा भी बोलो, सुनने रेडी है, लेकिन वो कैसे भी अपनी तरफ खींच लेंगे उनका। मेरे को समझ में आ गया कि वो अहमदिया, एक्चुअली मेरे को अहमदिया पहले मालूम भी नहीं था, एक 5-6 साल पहले। अहमदिया मस्जिद है उनकी, जो अहमदिया लिखा हुआ है, अहमदिया कम्युनिटी ऐसा लिखा हुआ है। तभी मेरे को डाउट आया, बट तभी मैं गूगल में सर्च करने लगा ये कौन सी मस्जिद है, अजीब है, अहमदिया लिखा है, तो मालूम हुआ ये मिर्जा गुलाम, फाउंडर इनका मिर्जा गुलाम अहमद है। तो उसके सब ये अकायद थे, उसने ये दावा किया था, वो मेहंदी होने का दावा, उसका नबूवत होने का, ऐसा बकवास पूरी पड़ी। उसके बाद मालूम हुआ कि ये नॉन मुस्लिम हो सकता है, ये मुस्लिम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझ। अच्छा साहिर भाई, जज़ाकल्लाह। और भी कलर हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जरा उर्दू में कन्वर्सेशन कीजिए तो हमें भी समझ में आती है। जी जरूर, जज़ाकल्लाह। अगले दोस्त हैं इमरान मनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? सही आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक से मुंह हटा के बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। आवाज आ रही है? बहुत सही, ठीक ठाक। आज 27वीं की रात थी, लगा करम है। भाई अपना माइक से मुंह थोड़ा सा हटाए, बहुत शोर आ रहा है। अब आवाज आ रही है? स्पीकर हटा दो, आवाज सही आ रही है? अब सही है जी। वो हेडफोन लगाया हुआ था मेरे ख्याल, उस वजह से। ये मिर्जाई के बारे में बोलना था मैंने, कहा ये तबरक के तौर पे क्या करते हैं 26 मई को, ये अपने ये तबरकात दिखाते हैं उसके मिर्जे के। ये देख ले, तबरकात देख ले। ये है वो लाहौर का जो मकान जहाँ पे मिर्जे कादियानी की डेथ हुई थी, इसके दरो दीवार से ये टट्टी मूतर टपक रहा है, और इसकी हालात देख लें जनाब। हाँ जी, ये दरो दीवार बता रहे हैं आपको कि मिर्जे कादियानी का यहाँ पे क्या हशर नशर हुआ होगा। ठीक है जी, तो यही बात है। बस लटरीने साफ करते हैं कादियानी मिर्जाई, टट्टी डे मनाते हैं अपना अच्छे तरीके से। 26 मई को, 26 मई को टट्टी डे होता है मिर्जाइयों का। क्योंकि मैं वाकैंड से ताल्लुक रखता हूँ, वाकैंड में भी काफी इनकी कम्युनिटी है,
इनका एक मजवाड़ा भी है इधर सरकारी तौर पे बना हुआ है, वो बहुत पुरानी बना हुआ है हाँ वाकैंड में ही ना। वो ना वो मास्क तो वैसे ही आप लोग आजकल लगा रहे होंगे, तो ये 26 मई के दिन तो आप खसूसी तौर पे खरीद के रख लें, तो बहुत ज्यादा बदबू आने वाली है आपको। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो साहब अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟ ਨੂੰ। हेलो, आवाज सही नहीं आ रही, नेट का कोई इशू चल रहा है। अल्लाह अकबर। चौधरी साहब कॉल काट के दोबारा आए। अगले दोस्त हैं हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, यार क्या बात है, ये मेरे नेट के साथ मसला है या कोई कमेंट करके बताएं भाई, ये क्या मसला है। ये अगले दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, अरशद बोल रहा हूँ सर यूके से। हाँ जी अरशद साहब, आवाज क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज तो बहुत साफ आ रही है, पता नहीं कि लोगों के साथ कोई मसला होगा। ठीक, कोई नेट का मसला होगा जी। आप फरमाइए जी। सर वो मैं असल में काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपके लाइव प्रोग्राम कब होता है, तो वो मुझे घंटी का प्रेस नहीं की थी, तो अभी मैंने प्रेस किया तो अभी नोटिफिकेशन आया, तो मैंने कहा चले आपके प्रोग्राम में हाजिरी लगा लें। जी जी जज़ाकल्लाह। तो जी फरमाएं जी, क्या फरमाएंगे आज के? अभी एक साथ से वो वाक एंड से थे, तो वाक एंड से मैं भी हसन अब्दाल वाक एंड से साइड पर हूँ। वो कह रहे थे कि सरकारी तौर पर मिर्जवारा वहाँ पर है, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी तौर पर उनका कोई ऐसी चीज नहीं है वहाँ पर। हाँ ये है कि मिर्जाई हमारे एक ट्यूशन में पढ़ता था वाक एंड में, तो वो भी एक मिर्जाई थे, उधर है काफी मिर्जाई, मतलब है कि मगर सरकारी तौर पर इनका ऐसी कोई जगह नहीं है वाक में। नहीं, वो गालबन कोई और बात कह रहे होंगे, सरकारी तौर पे तो शायद पता नहीं कहा है कि नहीं, मुझे नहीं, मैंने गौर नहीं किया, मुझे गलत समझाया हो। हाँ जी जी जी, तो वो शायद कुछ और कहा है उन्होंने। जी जी जी, तो बस यही था कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अजर दे। आमीन। तो इस फितने को असल में ये है कि ये लोग जो हैं सिर्फ वो एक अंधी अकीदत में हैं, इनको पता नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे आपके वसीले से। तो माशाल्लाह आप यही है कि अल्लाह ताला आपको भी जो ना ये अजर व सवाब दे और आप इस काम को जारी रखने का। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरशद साहब और की बात कहेंगे आप? बस यही कहना था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका शिरकत करने का। अली वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी सुनाओ की हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए जी। शाह जी अगे तो यही रबे की गल पे करते हो, उत्थे रूढ़ी है, तो मैं रूढ़ी दे कोल रूढ़ी ही होनी है, ते होर की होना उत्थे। यार अली साहब उर्दू में बात करें, वो पहले एक भाई कंप्लेन कर रहे थे कि मैं पंजाबी नहीं समझ आती। सही है, रूढ़ी ही होगी, तो गंद था मिर्जा कादियानी, जमाने भर का गंद था, तो वो जमाने भर का गंद उसके। हाँ जी ओदा कोल ही फिर होनी ही ना, ता बस मैं क्या ही। आप देखो हैरत की बात ये है कि वो गंदगी का ढेर है और जमाने भर का गंद ना वहाँ डाला जाता है। मिर्जा गुलाम कादियानी के वो बहिश्ती मकबरे के करीब, तो उसका नाम उन्होंने बहिश्त रखा है, यानी जन्नत है जी, मतलब गंद का नाम जन्नत। वाह जी। मैं शायद किसी मिर्जे दे गल करते हैं ना, तो मैं परेशान होना, मतलब मैं मिर्जे ने सुनन लग पैंदा तुहाडी स्क्रीन। सही है शाह जी, मैं काम लगे बाद इंशाल्लाह गल। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये ट्रुथ सीकर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जनाब। हेलो हेलो, आपका नेट सही नहीं है, आवाज सही नहीं आ रही जी।
हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब, मैं ज़ियार रसूल अर्ज कर रहा हूँ जी। शुक्र है। मैं क्या वो फेक आईडी माइंड रोस्टर ना फेक आईडियां बना के आ रही अच्छा अच्छा, मेरे नाम नहीं बनाई सी हजे हुन आया सी या किदे नाम तो आया सी गालपन तेरे नाम तो ही आया या मतलब हजे हुन आया सी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा बगैरत इंसान है यार है ये मिर्जा गुलाम कादियानी दी फोटो कापी सर। फोटो कापी हो भी बगैरत से मुखलस झूठ है, बोलता है फ्रडिया अजय फ्रडिया मैं मसीह मुखलस अहमदी है, मुखलस अहमदी मुखलस अहमदी है। मुखन्नस अहमदी अच्छा यहाँ पे आए हैं चौधरी साहब को कॉल पे ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब नेट का कोई इशू चल रहा है आपके साथ? चौधरी साहब आज लगता है आपसे बात नहीं हो पानी, नहीं सही नहीं आ रही। अच्छा ज़ियार रसूल मैंने स्ट्रीम खत्म करनी है भाई, कोई बात कहनी है तो कह लो। नहीं सर जी, मैं तो वैसे ही आया था स्ट्रीम ऑनलाइन देख के, बाकी साथी जो उनसे बात कर लें। चलो बस बात बकाया सबसे मैं बस वो ये स्ट्रीम करने लगा था तो मैंने आपको देखा। स्ट्रीम कर लो, आप कर लो, शुरू कर लो, मेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। नहीं मैं तो दूसरी करने लगा। दूसरी कौन सी? मेरा भी टाइम खत्म हो गया भाई, कर लो तुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद